It is good to be in the house of the Lord this morning. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. Once again. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, that we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. All the blood He has for me. My life is in His hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, God, you are a good God to us. You are a good Father. But we may not understand. We may not understand the depths and the heights of everything, Father. But you are in control of each and everything, each and every moment of it. We praise you. We praise you. Faithful God. Great are you, Lord, mighty in strength. You are faithful. You will
Father. You're beautiful beyond our descriptions, what we think, and what our mind imagines about you, Lord. You are beyond it, Father. And yet you still came down to reach to us so we can be closer than any other thing to you, Father. Thank you, Lord, for so much of love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Jehovah Jireh, Elohim, Adonai, El Shaddai. He never forgets me. He will never forsake me. You are the portion. Nobody can take away your word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Once again, good morning, church. Yeah, it's really hot Sunday morning, सभी को सुप्रभात। and good to see everyone after a week. सभी को एक हफ्ते बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। Yesterday, we were traveling in train, कल हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। and everyone was excited in the train, सभी लोग उत्साहित थे ट्रेन में and everyone said the war has stopped. कि जो युद्ध चल रहा था वो रुक गया। But बंद हो। whatever is happening, we know that God is in control of everything, जो कुछ भी हो रहा है हमें पता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, because it's written in the Bible. क्योंकि ये बाइबल में लिखा है In the last days, such things will happen. आखिरी दिनों में ये सारी चीजें होगा। But when we do not know all these things, और हमें जब ये चीजें नहीं पता होती है we are surprised what's happening. हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। But thank God, everything is in control. धन्यवाद परमेश्वर की सब चीजें नियंत्रण में है। And let's keep our eyes focused on God, और आइए हमारे जो ध्यान है वो परमेश्वर पर लगाए रखें, because He is in control of every situation. क्योंकि वो नियंत्रण में हर एक चीज के लिए। So just few announcement. कुछ सूचनाएं। As we already aware that 22nd to 25th of May, 22 से 25 में that this month only. इस महीने में So there'll be a conference. कॉन्फ्रेंस है। So in case if you have not yet registered, अगर आपने अभी तक so all the details have been posted. सारी जो जानकारी है वो व्हाट्सएप पे बताया है। You can make an online payment. आप ऑनलाइन में उसका भुगतान So कर that सकते Sunday, 25th of May, हैं। 25 मई को there won't be any Sunday service, Sunday morning service. यहाँ पर कोई सुबह का सभा नहीं होगा। So if possible, do come over there, Andheri. आप उधर आ सकते, अंधेरी की सभा अटेंड कर सकते हो। Same place, Holy Spirit Hospital Hall, Jensen Hall. होली स्पिरिट हॉस्पिटल का जेनसन हॉल में। And today is Mother's Day. आज मदर्स डे है। We all know mothers do so much of sacrifice. हमें पता है कि जो माँ होते हैं वो बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं। And so many things they do which we are not even aware of. बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसका हमें जानकारी नहीं है। And really we are blessed to have such wonderful mothers in our church. हम आशीषित है कि हमारे बीच में माताएं हैं। And also we like to honor all the mothers in our church. हम सभी माँओं को आदर करना चाहते हैं हमारे कलीसिया Can you में। stand? क्या आप सब खड़े रह सकते हैं? Can you clap? And also we have to be mother over here next time standing. So you can sit. Really we are blessed to have such wonderful mothers in our church. हम बहुत आशीषित है कि हमारे बीच में इतनी सुंदर माताएं हैं अपने कलीसिया में। Not only at home but in fact to all of us in church also. सिर्फ घर में ही नहीं पर इस कलीसिया में भी They are helpful in some or the other way. वो कहीं ना कहीं रीति से हमारे साथ मदद करते हैं। Like they're helping in Sunday school जैसे संडे स्कूल में मदद करते हैं, or even in choir. वर्शिप में। So really we are blessed here. हम आशीषित हैं। So that's it for the announcement. So let's welcome Brother Gunman for the offering. गुणवंत भैया का स्वागत करते हैं भेंट के संदेश के लिए। ओके, ये दान का संदेश है। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 7 पंक्ति बोलता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे ये पंक्ति जो है दावा करती है कि रियली एक विश्वासी जो है ना, जो उसकी जीवन में क्या परिस्थितियाँ चल रही है उसको देख के चलता नहीं है, लेकिन वो विश्वास से चलता है। वो विश्वास परमेश्वर से आता है ना। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है रोमियो का 10:17 में, है ना, कि जब हम
वचन सुनते हैं यीशु मसीह का, उससे क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है और हम जानते हैं कि उस विश्वास से क्या करते हैं, हम चलते हैं। तो एक मैं बात बताना चाहूँगा, उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय में यहाँ पे जो है अब्राहम है और उसका पुत्र है, और परमेश्वर ने जो है उसके पुत्र को जो है एक अर्पण की भेंट में उसको मांगा। और हम जानते हैं कि अब्राहम जो है उसका विश्वास परमेश्वर पे था और वो विश्वास के साथ वो चला, है ना, और अपने पुत्रों को लिया उसने, और जो भी वो वहाँ पर जो है लेके जो है बलि करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति का 22, और यहाँ पे जो है 7 पंक्ति में बोलता है, इसहाक ने अब्राहम से कहा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ पर सवाल है कि इसहाक जो है अब्राहम से सवाल कर रहा है कि हमारे पास आग है, लकड़ी है, लेकिन होम बलि के लिए क्या नहीं है? भेड़ नहीं है। और हम जानते हैं, अब्राहम भी जानता था वहाँ पर कि जो भेड़ जो है उसके पुत्र, भेड़ की जगह पे उसके पुत्र को क्या करने वाला है? अर्पण करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो जिसमें सोच रहा था कि ईसा के पास सवाल था, ओके, लेकिन अब्राहम के पास उत्तर था। लेकिन अब्राहम भी जब वो भेड़ को उसके पुत्र को लेके जाता है, बलि चढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है परमेश्वर के पास उपाय था। तो 3 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है जब हम परमेश्वर के लिए भेंट लेके आते हैं, चर्च में भेंट लेके आते हैं। पहली चीज़ कि हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। क्या हम प्रार्थना करते हैं, है ना? जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हमारे लिए उपाय है। और अगली बात यह है कि हमें जो है पूरी रीति से समर्पित रहना चाहिए। हम जब भेंट लेके आते हैं उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। और तीसरी बात विश्वास, है ना, विश्वास। ये 3 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सहायता करता है, मदद करता है कि उस भेंट के प्रति और परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने के लिए। और लास्ट जो है विश्वास योग्य भी परमेश्वर हमें बनाता है। तो हमें चिंता नहीं करना है कि हमें क्या देना है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमने पंक्ति पढ़ा कि हम विश्वास से चलते हैं, है ना। आजू बाजू हमारे जीवन में क्या परिस्थितियाँ चल रही है उसको देखते नहीं है, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। अब्राहम भी विश्वास के साथ चला और अब्राहम ने जो है उस भेंट को लेके गया, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया। तो हो सकता है कि हम जो है हमारे पास थोड़ी बहुत भेंट हो सकती है, लेकिन हमें उस भेंट के बारे में नहीं सोचना है, हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है, क्योंकि देने वाला वही है, उपाय करने वाला वही है ना, और हमें चलाने वाला भी वही है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम दान देते हैं तो 3 चीज़ें याद रखना है। क्या मैंने दान देने से पहले प्रार्थना किया है? क्या मैंने दान देने से पहले रियली मेरा मन समर्पित है परमेश्वर के प्रति? और तीसरी बात, क्या मैं विश्वास के साथ दे रहा हूँ, है ना। तो फिर हम बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना, परमेश्वर उपाय करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, रियली प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाइए, और प्रभु आपके प्रति समर्पित रहने वाला और विश्वास से चलने वाला व्यक्ति बनाइए गॉड। धन्यवाद देते हैं, इस दान को आपके हाथों में सौंपते गॉड। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आप पूरी करिए, और प्रभु लगने वाला प्रभु सारी चीज़ें प्रभु इस कलीसिया की आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं जो भेंट लेके आते हैं गॉड, उन्हें सौ गुना आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
Good morning, everyone. Good morning, everyone. सभी को We thank Pastor Roshan for allowing to use his pulpit. पास्टर रोशन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे इस बांटने का वचन को। And if you are paying about 5,000 rupees a month for sauna bath, you don't have to pay for the next 2 months. अगर आप सोना के नहाने के लिए अगर 5,000 भर रहे तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। It's God given. It's free till the end of June. जून तक मुफ्त में ये मिलते रहेगा हमें। You need to drink about a few liters of water and sit outside in the shade. और आपको कुछ पानी पीना होगा थोड़े लीटर भर और धूप में बैठ जाना है। You'll have good sauna bath. तो आपको अच्छा एक सोना जैसे नहाने का मौका मिल जाएगा वैसे। Do you believe God is in control? क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर नियंत्रण So में? He provides this season so that our toxins come out. परमेश्वर ये उपाय करके देता है ताकि हमारे जो खराब चीज़ें बाहर निकल आए। For those who can't afford, this is a good time. जो इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं वो ये अच्छा समय है हमारे लिए। I start running up in my bedroom because there's AC there. मैं दौड़ता हूँ मेरे बेडरूम में, वहाँ पे एसी है। My wife knows about it. She's down, sweating out in the kitchen. तो वो पसीना होते रहते हैं किचन में मेरी पत्नी जो है। If y'all want some tips for the summer, have less carbohydrates, lot of vitamin C. आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम लीजिए और विटामिन सी जो है This ज़्यादा is not from my लीजिए। own. This is we are award winners, the world's top award winners. My company was the world's top award winners for 4 consecutive years. The gold medalist. मेरे कंपनी में जो काम करता था वहाँ पे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो बताते थे Add less carbs for your diet and no sugars, less proteins, minimum food. और कम से कम खाना रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम रखिए, जो मिनरल्स है वो ज़्यादा होना If चाहिए। you can skip as much as your food is better, you will not feel the heat. अगर आप खाना कम कर दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी उतनी। I worked in temperatures between 45 to 85. मैंने ऐसे तापमान में काम किया है जहाँ पे 45 डिग्री से 80 तक जाती है डिग्री। At 85 you can, at 55 you can make an omelette on the car. 55 में आप लोग 55 डिग्री पर आप एक ऑमलेट बना सकते हो गाड़ी के ऊपर। I worked up to 85. You know 85 85 there's a degree furnace there, and there is aluminium being melted at 1200 degrees centigrade, just 8 feet, 10 feet away from you. 8 फीट जैसे 10 फीट दूर होकर वो एल्यूमिनियम की भट्टी जो है वहाँ पर मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे 200 डिग्री टेम्परेचर रहता है। We used to not eat rice, no chapatis, nothing to do with carbs, just water, vitamin C, this limbu juice, and a piece of chicken. और हम लोग सिर्फ रोटी या फिर चावल नहीं खाते थे, सिर्फ जो विटामिन सी होता है, नींबू पानी होता था और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते थे वहाँ पे। The best food was there in the company, but we could not eat it बहुत ही अच्छे से अच्छा खाना होता था कंपनी में, यहाँ पर हम खा नहीं पाते थे because we want to control our body heat from inside. क्योंकि हम लोग को नियंत्रण में रखना था हमारे अंदर की गर्मी को। So you don't have to worry of the heat. It is God given. It is how we manage the heat. ये गर्मियों के बारे में चिंता मत कीजिए, हम किस तरह से हम उसको संभालते हैं वो Now, ज़रूरी है। coming back to my message, और मेरे संदेश पे मैं आता हूँ। we often go out and we give out tracts. Am I right? We give out tracts. We go outreach, which is very very good and great. और हम आउटरीचेस में जाते हैं, लोगों को पर्चा देते हैं, उन्हें बांटते रहते हैं, पर बहुत अच्छी बात है ये। What is the one thing you tell the person you meet? और एक चीज़ क्या है जो हम कहते हैं, Yes, God loves you, God loves you। loves you, right? Jesus loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। This second statement may offend some of them. किसी किसी को ये बहुत चोट पहुंचाने वाली बात होगी, जैसे कि But when you tell a common man, whether it's a Hindu or a Muslim or a Buddhist, God loves you, it does not matter to him. और यहाँ पर जो है लोग चाहे अलग अलग विभिन्न जातियों से रहे, पर उन्हें जब ये जो आप कहते हैं तो उनके लिए मायने नहीं रखता है वो बातें। The moment you tell Jesus loves you, he takes one step backwards. और एक जब हम कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है तो वो कदम अपने पीछे ले लेता है, That's a good thing. और ये अच्छी बात है।
You go on the offensive, he gets on the defensive. वो आप उन्हें चोट पहुंचा Remember देते हैं that. पर वो पीछे आ जाते हैं जैसे कि। The next step, he's waiting what you are going to speak now. और दूसरी बात है वो रुका हुआ रहता है कि आप क्या कहने वाले हो आगे। And at the end of about 2 hours, we come back and we are so happy. I could speak to about 20 people, 10 people or 5 people. हम खुश होते हैं कि हम 20 जन से 10 जन से या 5 जनों से बात कर पाए करके। And then when somebody comes to the church, we are so happy about it. और जब कोई कलीसिया में आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। And there are so many people in the church, hundreds and hundreds who come, and the Spirit of God draws them. और कई लोग हजारों की संख्या में आते हैं जो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा उन्हें खींच लाती है। But often at times, a few people fade away. पर कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जहाँ पे कोई लोग नाकामयाब हो जाते हैं या गिर जाते हैं। But in greater grace, most people stay back. पर ग्रेटर ग्रेस में ऐसा है कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं Because we have a very strong Bible college and infrastructure. क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा बाइबल कॉलेज है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जगह है। This helps us to go in depth and deep to understand a lot of things. और ये चीज़ें हमें सहायता मदद करती है कि हम गहराइयों में जाके समझें उन चीज़ों को। But still sometimes we lack certain things we need to understand. पर कई बार हम लोग उन चीज़ों को छूट जाती है और वो हमें समझने की ज़रूरत है। So I was talking to a few pastors. मैं कुछ पास्टरों से बात कर रहा था, पासवानों से। I did not went into an argument, I kept quiet. और मैं उनके साथ बहस नहीं करने लगा पर मैं चुप रहा वहाँ पर। Because to keep quiet is better than losing a friendship. चुप रहना बेहतर है ताकि हमारी दोस्ती बरकरार रहे। Because there are technical things in the Bible where a dispute arises and then you divide Christianity into different parts. और ऐसी चीज़ें हैं बाइबल में जहाँ पर कुछ चीज़ों के कारण बहस हो सकती है और मसीहत टूट सकती है। For which Christ never came for. और उस चीज़ के लिए यीशु मसीह कभी नहीं आए थे। He prayed in the book of John chapter 17. He says, Father, I pray that they may be one just as we are one. और यूहन्ना 17 में जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं और आप एक है वैसे ये भी एक बने रहे। One person went on to the extent to say that even the speaker who is preaching the message, calling so many people to surrender to Jesus and to accept Christ, he is himself not saved. और वहाँ पर एक प्रचारक ऐसे भी कहने लग गया था कि ये प्रचारक जो सभी को बुलाते रहता है वो अपने लोगों से कहता है कि सब कुछ सौंप दो परमेश्वर को, पर उसने उद्धार नहीं पाया है अभी तक। I said, what type of a God we have? He sends people who are not saved. When people are not saved, they are representing the evil force, the devil. और मैं सोच रहा था कि जब वो उद्धार नहीं पा रहे हैं तो वो परमेश्वर को नहीं शैतान को दर्शा रहे हैं वहाँ पर। Jesus told the Pharisees, if these people stop praising me, the stones will scream out. और परमेश्वर ने वहाँ पे कहा कि अगर ये लोग प्रचार करना बंद कर दे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। God has the ability to send His anointed people to preach so that hundreds and thousands and millions will enter heaven. और परमेश्वर उन दासों का अभिषेक करता है कि जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग उद्धार पा सके। Only thing you have to be in the right place. ये एक बात ये है कि हमें सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। Romans chapter 5, रोमियो के 5 में verses 1 and 2. पहले 2 वचनों में पर देखते हैं हम। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. इसलिए विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ शांति बनाए हुए हैं। The sentence that follows it is beautiful. और ये जो आगे जो वाक्य लिखा हुआ है बहुत सुंदर है। Through whom also we have access by faith into this grace. और उसी के द्वारा विश्वास के द्वारा हम अब अनुग्रह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। You know, if you understand these two words, justified and access is very important. और यहाँ पर हम इन 2 शब्दों को अगर समझे, जैसे कि हमारा जस्टिफाई कर चुके, न्याय हो चुका है और हम अंदर जा सकते हैं। Both are technical words. दोनों ही बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स है, शब्द है। The word justified is used in the court of law.
ये जस्टिफाइड जो वर्ड है, जो न्याय के इसमें इस्तेमाल किया The जाता word है, access it can be used everywhere. और ये जो दूसरा शब्द है एक्सेस, जो मतलब अंदर जाना, वो आसानी से इस्तेमाल होता है। Now I know this word access better than most of us over here. I'll tell you why. मुझे ये एक्सेस जो वर्ड है, जो अंदर जाना, वो बहुत जैसे अनुभव है उसके बारे में। We had power stations, हमारे पास पावर स्टेशन थे, unmanned power stations, and if I had a contract over there with the government of Bahrain, और वहाँ पर मनुष्य नहीं था और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उस गवर्नमेंट ऑफ बहरीन से। but still to enter that and unlock the power station, I need to have an access permit. और वहाँ पर अंदर जाने के लिए फिर भी हमारे पास एक्सेस परमिट होना चाहिए था। With a government authorized engineer. वो गवर्नमेंट अथोराइज इंजीनियर हमारे साथ में होना जरूरी था। So the permit access writes my name, writes that engineer's name. We both sign. He keeps a copy, I keep a copy, and the third copy I paste on the door that I am inside. और जैसे वो पावर स्टेशन में जाने के लिए हमें वहाँ पे मेरा नाम, उस इंजीनियर का नाम, और वहाँ पे 2-3 कॉपी करनी पड़ती थी। एक मेरे पास रहती थी, इंजीनियर के पास, और एक दरवाजे पे लगानी पड़ती If थी। there's a blast or some big accident in the power station, the police comes in, they see the permit there. और वहाँ पे कुछ ब्लास्टिंग होता है या अनगुनित ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे पुलिस देख सकती है कि वहाँ पे है। They will try to save me because I have an access given by the government. और उनको मुझे बचाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे अनुमति दी गई थी वहाँ पे अंदर जाने की। The word of God says that we have access by faith over here. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंदर जा सकते हैं विश्वास के द्वारा। So the access to us is a permission given by God to enter into His grace. और ये अनुमति जो है परमेश्वर ने स्वयं हमें दी है विश्वास के द्वारा कि हम उसके अनुग्रह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। Grace is God's character because we are humans. महान अनुग्रह परमेश्वर का चरित्र है क्योंकि हम मनुष्य हैं। We are fragile. हम ऐसे कमजोर हैं। We make mistakes. हम गलतियां करते हैं। And we go before God. हम परमेश्वर के सम्मुख जाते Full of हैं sin. पाप के कारण। But God allows this access so that we worship Him. परमेश्वर अनुमति देता है हमें अंदर आने की क्योंकि हम उसकी आराधना कर Even the सकें। praise and worship that we conduct over here or any church and anywhere or everywhere, it is because God has given us that access because He justified us. हम यहाँ पर आराधना स्तुति या कहीं पे भी हो हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अनुमति दी है कि हम अंदर विश्वास से उसके अनुग्रह में अंदर आ सकें। Justification is a declaration by God the Father. जस्टिफिकेशन जो है ये जैसे न्याय करना है परमेश्वर के पिता की ओर से हुआ है, which cannot be revoked वो जैसे कि बदलाव नहीं किया जा सकता वहाँ पे, or undone by any person. या फिर किसी मनुष्य के द्वारा उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। By His death, paying for our transgression. सिर्फ परमेश्वर की मृत्यु के कारण हमारे जो पाप के भुगतान किया गया है उसकी वजह से है। So when we go out to give tracts, we said Jesus loves you. That person does not know what that word means. और जब हम पर्चा देते हैं और कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, उस व्यक्ति को पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है। नहीं, उसको पता नहीं है, वो समझ नहीं पाता। He is not Able वो to समझ नहीं understand. पा रहा है वो क्या कर रहा है। He does not understand the word वो justification. उस शब्द को वो समझ नहीं पाता है उस समय पर। But he is still saved because he makes that prayer based on your faith and what you spoke to him. फिर भी वो प्रार्थना जब करता है, विश्वास करता है, तो हमारे विश्वास के द्वारा और जो कुछ भी हमने उससे बांटा है उसके द्वारा। We'll just run through what happened over there. हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। Was Jesus utterly stressed in the Garden of Gethsemane when he said, Father, take this cup away from me? क्या यीशु मसीह पूरी तरह से थक चुका था गत्समनी की वाटिका में जब वो कह रहा था कि ये प्याला मुझसे ले लेना पिता। One study shows, study tells us his blood pressure went so high that his veins may have bursted out. और एक पढ़ाई ऐसी बताती है कि उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनकी नसें फट चुकी थी और वहाँ पे उनका लहू बह रहा था। Because the word of God says his sweat was like drops of blood. और वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है कि उसके जो पसीने की बूंद मानो कि जैसे खून की बूंदें थी। Was he scared about the pain, about what he will go through
through the death. क्या वो डरे हुए थे कि वो दर्द कैसा होगा, क्या होगा करके? He was not scared about वो the डरे हुए pain. नहीं थे, Because Paul tells us in the book of Ephesians, we were saved before the foundation of the world. और इफिशियन की किताब में पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार तो ये पृथ्वी का नींव रखने से पहले ही हो चुका God था। the Father, God the Son, and the Holy Spirit decided that Jesus Christ would have to go down one day and become a sacrifice पिता for us. परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा ने निर्णय लिया था कि यीशु मसीह को एक दिन जाना होगा उद्धार के कारण। What was the anguish within him? वो क्या था उनके अंदर? Was he scared of death? क्या वो मृत्यु से डर रहे थे? No. नहीं। He said, tear down the temple and in 3 days I will build it up again. यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को गिराकर देखो, 3 दिन में वो उठ खड़ा होगा। Remember one thing, याद रखना एक, he was always communicating with the Father from the beginning, even before the foundation of the world, until that point of time. और यीशु मसीह जो हमेशा वार्तालाप किया करते थे अपने पिता से पृथ्वी के होने से पहले ही। The only thing that pained Christ was और एक ही चीज जो उन्हें दर्द थी वो थी when he saw that the sins of the entire world would be put upon his head. और वो एक ही चीज थी कि पूरे संसार का पाप जो है उनके ऊपर डाला जाएगा He would become a sinner in our place. और वो हमारे लिए पापी ठहराए जाएंगे। Even this did not scare him, वो भी उन्हें डर नहीं दिया, but only the separation from the Father for those 3 hours made him. और सिर्फ एक ही चीज थी जो है पिता से उनका अलगाव जो हुआ था वो उन्हें दर्द दे रहा To था। make that statement. और उन्होंने वो शब्द कहे There was a temporary separation at that time. और उस क्षणों में अलग अलगाव हुआ था पिता और पुत्र के बीच में। And when he thought of it, his veins may have bursted and his sweat was drops of blood. और वही सोच के कारण उनके शरीर से जैसे लहू, नसों से लहू बहने लग गया He था। himself goes and he hands over at the time the sacrifices were about to happen in the temple. He hands himself over to the authorities. और जब भेंट चढ़ाने का समय आया था उन्होंने स्वयं जाके अपने आप को सौंप दिया था उन अधिकारियों को बलि के लिए। Justified is a very easy word for us to read in Romans chapter 5 and so many other places, but it was not easy. और रोमियो के अध्याय 5 में ये शब्द का उल्लेख जो किया है बहुत आसानी से हमें कहना, पर वो करना बहुत He मुश्किल था। was whipped in such a way that the whip carried hooks and lead pieces at the end where the flesh tore and the bones could be seen. और वो जो उन्हें बेदों से मारा गया उन पे जैसे ऐसे हुक लगाए गए थे जहाँ पे उनका मांस खींच के आता था। Peter says, by his stripes we are healed. और पतरस कहता है उनके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है। Hebrews chapter 13 verse 5 reminds us he'll never leave us nor forsake us. इब्रानियों का 13:5 में लिखा है कि परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा हमें। Romans chapter 5:18 says, रोमियो का 5:18 कहता है through one man's righteous act, एक व्यक्ति के धर्मीपन से the free gift came to all men, और ये मुफ्त में तोहफा हम सभी को मिला है, resulting in justification of life. जिसका वजह से हमें जस्टिफाई कर दिया गया है। If we just read through, और अगर आप जब हम पढ़ते हैं ये सब we cannot comprehend. वो हम सब समझ नहीं But पाएंगे। when we put all the points together, we'll understand. और जब हम सारी चीजें एक साथ मिला के पढ़ते हैं तब हम समझ पाएंगे। His death was very painful for him. और वो जो मृत्यु थी बहुत ही दर्दनाक थी उनके लिए। After he was whipped, he did not die, even though blood was oozing from all the places. और मारने के बाद भी वो खून जब बह रहा था वो मरे नहीं थे वहाँ पे। If an accident victim, blood is flowing, is taken to the hospital, the first thing the nurses, the emergency does is to check the blood pressure and see how much blood is still in the body. और जब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और लहू बहते रहता है, पहली चीज जो नर्स जो है वो चेक करती है उसका प्रेशर कितना है और कितना लहू बह रहा है। In order to keep that person alive, blood is then pumped inside to the intravenous action. और वो व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए फिर लहू चढ़ाया जाता है। Hebrews chapter 9 verse 24 says, इब्रानियों का 9:24 कहता है "For Christ has not entered the holy places made with hands, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जगहों पर प्रवेश नहीं किया जो हाथ से बने हुए but हैं, in heaven itself, पर स्वर्ग में to
to appear in the presence of God for us. और पिता परमेश्वर के सम्मुख रहने के लिए हमारे कारण His death was painful. उनका मृत्यु जो है दर्दनाक था। Justification was not free. और जस्टिफिकेशन जो था, न्यायपन जो था, वो मुफ्त नहीं था, It was at a cost. उसका कीमत चुकानी पड़ी। God the Father had to pay पिता by परमेश्वर ने चुकाना the पड़ा sacrifice of His Son. अपने पुत्र का बलिदान करके। 1 Peter chapter 2 verse 24 says He bore our sins in His own body on the tree. पहले पत्रस 2:24 में कहा है कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए सारे पापों को ढा लिया है। जैसे We carry on our lives, we go out evangelizing, we do Bible college, we do everything. But when we come to the cross, हम सब कुछ करते हैं हमारे जीवन में, बाइबल कॉलेज, कलीसिया, सुसमाचार बांटना, पर जब हम क्रूस के पास आते हैं we see the humility of God the Son hanging on the cross. तब हम देखते हैं परमेश्वर की नम्रता जो क्रूस पर वो दिखाई देती है। I remember in Bahrain I was there and sometimes there were songs, the hymns that we sang, and we trampled Satan under the feet, and Jesus Christ defeated the devil and all these things. But the example that was given, और जैसे बहरीन में हम जब थे, जो स्तुति गीत गाते थे और गाने गाते थे, पर वहाँ पर जो उदाहरण दिए गए, this is what the picture that is given to us. और ये चित्र उन्होंने जैसे हमारे सामने रचा था। When the two kings are at war, और जब दो राजा युद्ध में रहते हैं, the defeated king is brought with his hands and eyes gouged out. और उस जो हारे हुए राजा को उसके हाथ बांध के उसकी आंखें जैसे बाहर निकाल के उसे लेके आते हैं। The victorious king would stamp his right leg over the head of that king. और जो राजा जिसने विजय पाई है, वो उस हारे हुए राजा के सर पर वो अपने पैर रखा करता And we था। are happy and we are dancing, we are so proud about it. और हम खुशी मनाते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं उसके ऊपर। If we put ourselves in the place of that king, we are so proud, we are filled with so much of pride that we defeated our enemy. अगर हम यहाँ पर अपने आप को उस जगह पर, उस जीते हुए राजा की जगह पर रखें, तो हम कितनी सारी विजय पाए हैं और हम But घमंड करेंगे। if you understand the death of Christ, पर आप परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु को अगर जानेंगे, He defeated the devil by humility, not by hitting anyone, but taking on those spits, by taking on those beatings, by taking on the kicks, the slaps, the crown of thorns upon his head, the spear and everything. He was completely, the blood was out of his body. और हम अगर यीशु मसीह की नम्रता को देखते हैं, तो उन्होंने कुछ युद्ध नहीं किया, पर नम्रता से लोगों के मार को, लोगों की निंदा को सब झेलते हुए उन्होंने वो विजय प्राप्त की है। He did defeat the devil, but it was through his own sacrifice and humility that was hanging on the cross. उसने हाँ शैतान को तो हराया, पर उनकी खुद की नम्रता से उस क्रूस पर उन्होंने हराया। All this brought a victory to us. और वही सारी चीजें हमारे लिए विजय ले आई है। There are certain things happen in our life. कुछ चीजें हमारे जीवन में जो होती है, There are people who come to church and that is good. The Spirit of God brings them. हाँ, पर लोग कलीसिया आते हैं और परमेश्वर की आत्मा उन्हें लेके आती है, But we still live in a defeated conscience. पर फिर भी हम जैसे मानो जीते जैसे हम हारे हुए लोग हैं। Some people will come and complain, oh, I am sick always. और कोई लोग आके कहेंगे कि मैं बीमार रहता हूँ हमेशा। Some people will come and they will say that I don't have a job, I get a job, I lose that job, I go to another job, I lose that job. और कई लोग आएंगे, मेरे काम है, नौकरी है, वो छूट गई है, मिलती है, वापस छूट जाती है, ऐसे लेके आएंगे। Somebody will come and say that I'm looking for a girl, and some girl will say I'm looking for a boy. I'm not getting it. कोई लड़की कहेगी मैं लड़का ढूंढ रही हूँ, लड़का कहेगा मैं लड़की ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं बराबर से जोड़े। We come to church to know the living God. हम कलीसिया आते हैं जीवित परमेश्वर को जानने के लिए। We need to understand whom we believe in. हमें समझना है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। We are living sometimes as a defeated person. हम कई बार ऐसे जीते हैं माने कि हम हार रहे हुए लोग हैं। For a child of God, for a child who is bought by the blood of Jesus, he is never defeated. एक जो बच्चा जो परमेश्वर ने पाया है, वो कभी भी हारा हुआ नहीं है। My situation does not define my sonship in God. मेरी परिस्थिति मेरे पुत्र होने के बारे में नहीं दिखलाती है। There's a great difference between the truth and the facts.
यहाँ पे फर्क होता है फैक्ट्स में और सच्चाई में। How can I say I'm healed when my body is still sick? मैं कैसे कह सकता हूँ मैं चंगा हूँ जब मेरी शरीर अभी भी बीमार जैसा है। We live in two worlds, हम दो संसार में जीते हैं, the natural as well as the spiritual. हम स्वाभाविक जीवन संसार में और आत्मिक संसार में रहते हैं। The spiritual person आत्मिक व्यक्ति जो है lives वो जीता है by the word of God. वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीता The है। spiritual person आत्मिक व्यक्ति जो है understands God better because of the word of God. वो समझता है पिता परमेश्वर को क्योंकि उसके पास वचन है। The spiritual person puts his life priority in the presence of God. और जो आत्मिक व्यक्ति है तो परमेश्वर जो राजकुमार है उसके ऊपर रखता He है। is less worried about the cares of the world. वो बहुत ही कम जैसे कि मानो चिंता नहीं करता है संसार When की the क्या हो। pastor is telling there is Bible college and this and that, he runs first, put my name there. और जब बाइबल कॉलेज के बारे में जब पासवान ये कहता है वो पहले वो किया करता है। Because justification does not end in one day, it carries on. God's क्योंकि word carries न्यायपन on. जो है वो एक दिन के लिए रुकता नहीं, वो चलते रहता है। It moves on to sanctification. क्योंकि वो जैसे हमें साफ करने के लिए भी लगा जारी रहता है। And I'll go a little bit more. We are in the world, but not of it. हम संसार में हैं पर उसके नहीं हैं, But we are residing on the earth, क्योंकि हम जो है इस पृथ्वी पर है but we are citizens of heaven. पर हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। We are standing on the earth, हम यहाँ पर पृथ्वी पर तो खड़े हैं but we are still seated in the heavenly places पर हम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए जा चुके हैं with Christ Jesus. यीशु मसीह में। We are an outward man, हम बाहरी रूप से एक मनुष्य है, but we are an inward man also. उसी समय में अंदर से भी हम एक व्यक्ति है। The inner man is the spirit that God gave us. और जो अंदर का व्यक्ति है वो ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें And दी the है। sanctification process of the inner man comes in the soul when you study and internalize the word of God upon और वो you. शुद्धिकरण जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। The earthly kingdom will not change. और ये सांसारिक जो राज्य है वो बदलेगा तो नहीं। The kingdom of God परमेश्वर का राज्य जो है can change the earthly kingdom. वो बदलेगा इस सांसारिक राज्य को। The word says वचन कहता है we are healed. हम चंगाई पा चुके हैं That's the truth. और ये सच्चाई है। The fact says और यहाँ the facts will never change the truth, और सच्चाई को जो चीजें हैं वो बदलाव नहीं लेके आ सकती। but the truth will change the facts. सच्चाई जो है जो हमारे सामने रखा गया है उसको बदल सकती है। It is quite acceptable with God ये परमेश्वर के साथ ऐसे हो सकता है to look at कि हम वो देख रहे हैं and address the facts of your life और वो चीजों को हमारे सामने बता तो देंगे as long as the truth remains preeminent. जब तक सच्चाई वहाँ पे बदलती नहीं है। I took a long time to study and I had my notes and then I had to copy down to precisely bring in what was required. और मैं यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ, ये सारी चीज़ों को लिखा हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ। When we have people in the church, especially newcomers, जब हमारे कलीसिया में नए लोग आते हैं you are mature. जो आप परिपक्व हो, You need to guide them in absolute truths of the word, that what the Bible talks about them. आपको उन्हें सच्चाई में और परमेश्वर के वचनों की गहराई में लेके The जाना Bible है। says, बाइबल कहती you है shall know the truth and only the truth shall set you free. आपको सच्चाई मोल लेनी है और वही आपको छुटकारा दिलाएगी। The word of God परमेश्वर का वचन will lead us always. वो मार्गदर्शन करेगा हमारा। God does not leave us alone. परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। The prodigal son और जो बुढ़ा पुत्र था was poisoned, had poison in his mind from someone else. और उसके मनों में जैसे कि किसी ने जहर घोल दिया था। He goes out and tells his father, वो जाके अपने पिता को कहता है give me half of my share. और मेरे तुम्हारी जायदाद में मेरा हिस्सा दे देना आधा। This is what happens ये ऐसा होता है half the way to most of us. जैसे हमारे साथ कईयों के साथ ऐसा हो जाता है।
But if we listen to worldly ideas and things, और अगर जब आप सांसारिक बातों को सुनते हो और सोचते हो, we stop coming to church, आप कलीसिया आना बंद करोगे, we stop doing Bible college, हम बाइबल कॉलेज करना बंद कर देते हैं, we don't listen to what the pastor has a program for us. हम सुनते नहीं है पासबान क्या कहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स क्या है And करके। then what happens? फिर क्या होता है, There was a famine in the land. तब वहाँ पर जैसे अकाल पड़ जाता है। There was a person who came to the pastor. एक व्यक्ति पासबान के पास आया, I saw a dream. आज मैंने एक सपना देखा, Some big snake, some snakes came to bite me. कुछ सर्प जो है मुझे डसने आ गए, I was scared. मैं डर गया। The pastor told him, और पासबान ने उसे I'll कहा, pray, मैं प्रार्थना करूंगा, let a big snake come and bite you. एक बड़ा और सांप आके तुम्हें डसे। Why? Because he does not want to lose the man. क्यों वैसा चाहता था? क्योंकि वो व्यक्ति को खोना नहीं चाहता था। When you are in Christ and you are in the right place, आप जब मसीह में हो और सही जगह पर हो, God will guide every path of yours. और परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा हर The एक Bible स्टेप्स को। says, Your word, O Lord, is a lamp unto my feet and a वचन light to कहता my है path. कि आपका वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति है प्रभु। Do you know something? You have read the parable of the prodigal son. आपने उड़ाव पुत्र के सिद्धांत को तो पढ़ा होगा। You read the famine was there in the land, वहाँ पे right? आपने पढ़ा था कि एक जैसे कि अकाल पड़ा था वहाँ What पर। if I tell you God brought the famine in? मैं अगर कहूँ कि परमेश्वर ने वो अकाल ले आया तो? What if I tell you God allowed the famine to come in? मैं अगर आपसे कहूँ कि परमेश्वर ने अनुमति दी उस अकाल को आने के लिए तो? Is not God able to stop the famine? क्या परमेश्वर उस अकाल को रोक नहीं सकता? Because his son is there, hungry and tired and lost all his money with the prostitutes. और क्या वो रोक नहीं सकता कि उसका बेटा वो भूखा है, सब पैसे खो चुका है, इस तरह से थका हुआ है देखकर? Sometimes we pray like this. हम उस तरह से प्रार्थना करते हैं। We try to be goody people, हम अच्छे बनना पसंद करते हैं। and somebody comes, so Pastor, can you please pray for me? और जब आते हैं तो पास्टर आप मेरे I लिए have प्रार्थना this करो, problem. मेरे पास ये समस्या है। Try to analyze the situation and what the problem is, from where it is come. आप सोचिए उस समस्या को किस तरह से समाधान करना है, वो कहाँ से आ रही है। A few days back, there was a big party of our ex-school students. और कुछ दिनों पहले बड़े एक्स स्टूडेंट्स के हमारी जैसे एक सम्मेलन जैसे एक साथ And a friend पार्टी of थी। mine did everything to attend the party. He came from US. और मेरे दोस्तों ने सब कुछ किया वहाँ वो अटेंड करने के लिए, वो यूएस से भी आ गया। The day the party was there, you got UTI. और जब जिस दिन पार्टी थी उसे कुछ हो गया। It's a fact. I'm telling you some fact. Just few days. UTI is urinary tract infection. उनको हाँ। जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया था वहाँ He पर। was so terrible. He could not get up from his इतना bed. खराब इन्फेक्शन था कि वो उठ खड़े भी नहीं हो पाए। The party got over about 1 in the night. पार्टी जैसे रात को 1 बजे खत्म हो गई। At 2 o'clock, his fever, his UTI got over. He was about to stand. He could go around. और ये 2 बजे जैसे खत्म हो गया और 2 बजे से चल फिर पा रहा था। Next day I called him. I said, "What happened?" दूसरे दिन मैंने उसे कॉल किया और कहा क्या हुआ? He said, "The devil did not allow me to go." और जैसे उसने कहा कि शैतान ने मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं जाऊं। I kept quiet. I didn't want to explain further because both of us we witnessed to him at a lunch table, and I gave him our belief what we believe in for half an hour. और मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। वहाँ पर मैंने और नदी भी वहाँ पे थे, उन्होंने सुसमाचार उससे बांटा था। He talks like a believer, but he is a Catholic. वो विश्वासियों के समान बात तो करता है पर वो अभी तक विश्वास में नहीं है। A thought came to me. मेरे अंदर एक विचार आया, If God wanted him to go for the party, अगर परमेश्वर उसे अनुमति देता था even जाने the के लिए, devil couldn't do anything. But God allowed certain things to happen. पर परमेश्वर ने कुछ चीजें की जो वहाँ पे अनुमति नहीं दी प्रभु He ने। had friction with lot of people over there. वहाँ पर उसके बहस हो जाती थी कई लोगों से। God allowed the famine so that his son would return back to his house. परमेश्वर ने वो अकाल लेके आया ताकि वो पुत्र वापस जा सके। Human mind sometimes does not work, और जो मनुष्य के मन है वो चलता नहीं है कई बार। especially when the pastor is preaching or something is teaching or the Bible college is going on. Human mind is wondering, oh, I need to see at that girl, I need to see that boy, I need to cook this, and some guests are coming. The devil puts these thoughts into our minds. If you
read the book of Ecclesiastes and the book of Job, अगर जोब की किताब हम सबोदेशक पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है कि जब पासवान प्रचार करते हैं तो हमारे मन कई अलग अलग चीज़ों की तरफ भटकते रहते you हैं। need to learn to reject these thoughts and put priority to the work of God. हमें निर्णय लेना होगा कि हम इन विचारों को नकारें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। If the prodigal son would be meeting us on the road अगर वो उड़ाव पुत्र हमें रास्ते में के बीच में मिले, and Dipali goes, Jesus loves you, अगर वहाँ पर मैं कहूँ उसे कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, he puts down the window of his Mercedes Benz and he said, get lost. और वो खिड़कियाँ बंद करेगा गाड़ी की और बोलेगा यहाँ से निकल जाओ। After some days he loses his Mercedes. और कुछ दिनों के बाद वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी खो देगा। He is in a simple motorbike. वो साधारण से मोटर बाइक पे है। Gulwant goes to him. गुणवंत भाई उसके पास जाते हैं, Jesus loves you. यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। Hey, you crackpots, why are you so crazy about Jesus? He will say. ये पागल लोग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये सब क्या बता रहे हो हमें यीशु मसीह के बारे में। Then his motorbike goes away. He is walking down the street. और उसकी मोटर बाइक चली जाती है और वो रास्ते पे चल रहा है। He has got still about few lakhs of rupees. उसके पास अभी भी थोड़े लाखों रुपए बचे हुए हैं। And one of you meet him on the road and you invite him for a birthday party. और उसमें से आप लोग हैं और आप उसे बर्थडे पार्टी में आने के लिए निमंत्रण देते हो। He enjoys the eat food or drink or whatever and he goes away. और वो खाना पीना खाता है, आनंद लेता है और चला जाता है। A day comes in that land. और वो उस समय वहाँ पे एक दिन आता है, There are no parties. वहाँ पे कोई भी उत्सव नहीं है, पार्टी नहीं Nobody है, is ready to invite anyone. कोई एक दूसरे को बुलाने के लिए उत्तेजित नहीं है। The Bible says, and there was famine in the land. और वहाँ पे बाइबल कहती है कि वहाँ पे अकाल पड़ा था। God brought in the famine. परमेश्वर ने वो अकाल ले आया। Mercedes did not have the fuel. और मर्सिडीज में वहाँ पे तेल नहीं था, Motorbike did not have the petrol. मोटर बाइक में पेट्रोल नहीं था, We could not bring the biryani and the cakes. हम लोग बिरयानी और केक नहीं ला पाए। Everything is taken away. सब कुछ जैसे निकाल लिया गया। God allows it. परमेश्वर अनुमति देता है वहाँ So पे, that my mind works in the right direction. ताकि मेरा मन जो है परमेश्वर की दिशा में चले। When we are doing well, we have everything. We think about all these things. और जब हम अच्छे करते रहते हैं, हम ये सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। God is interested in that fellow who was justified and he wants to pull him back. और And only when परमेश्वर- he eats with the pigs, he remembers I'm eating dirty things. और जब वहाँ पे परमेश्वर उसे उस दलजाल से निकालना चाहते हैं और न्यायी ठहराना चाहता है, और वहाँ पे जब वो खा रहा होता है सुअर का खाना, तो उसे याद दिलाना चाहता है कि मैं ये क्या खा रहा हूँ करके। He gets up. वो उठता है, He says, I will get up. वो कहता है मैं उठ खड़ा हूँगा। Every person who falls, God picks him up. और हर एक व्यक्ति जो गिरता है, परमेश्वर उसे खड़ा करता God है। brings in the situation. परमेश्वर वो परिस्थिति लेके He आता says, है I will get up and go to my father. और वो कहता है मैं उठूंगा और मेरे पिता के पास जाऊंगा। He remembered what? वो याद करता है क्या? The love of the father. वो अपने पिता के प्रेम को The याद करता great है। things the servants ate in his father's house. और वो महान चीज है जो उसके दास खाया करते थे And उसके they never पिता के घर lacked में। anything. और उन्होंने कभी कंपन महसूस नहीं किया। He said, I'll go to my father and tell him, I have sinned against heaven and you. और मैं मेरे पिता से कहूंगा कि पिता मैंने गलती की है आपके विरुद्ध और इस स्वर्ग के खिलाफ। And before he's far way off, the father sees him, goes and hugs the dirt and the sun. और जैसे ही पिता ने उसे दूर से ही देखा, वो दौड़ कर उसके पास जाके उसे गले He लगाया। puts sandals on his feet, he puts his robe back again, the और robe उसे- of righteousness. अच्छे कपड़े पहनाता है, धार्मिकता के वस्त्र He puts पहनाता a है, ring on his finger उसके हाथों में अंगूठी पहना देता है and he makes him his son back again. और उसे वापस अपना He पुत्र wins बनाता him है। back because he loved him. वो जीत लेता है क्योंकि वो उसे प्रेम करता है। Now, if there is somebody like this who has met Dipali, he said, oh, that is my story. और- And she told me, Jesus loves you. और यहाँ पर अगर कोई मिलता है, वो कहता है अरे हाँ यीशु मसीह से प्रेम करता है, ये कहा गया था। But when he comes to the church, we need to define that word love and justification, which goes hand in hand together. और यहाँ पर जब कलीसिया में कोई आता है, वो प्रेम के बारे में और न्याय ठहराने के बारे में वहाँ पे उसे वो सिखाना जरूरी है। वहाँ पे जब If any of you has a court case, you will understand how difficult it is to attend the cases every day.
और अगर आपके में से किसी का कोर्ट केस है तो आप समझोगे कि आपको कितनी बार वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं। It took Jesus 3 days and 3 nights to pay for the entire sins when he was whipped, or he was taken, he was arrested on a Tuesday, he was put to death, the death was sanctioned by the Sanhedrin and the high priest, and he taken to Pilate on Wednesday at something, and Friday morning he was crucified. यीशु मसीह को जैसे उस पाप का भुगतान करने के लिए पूरे 3 दिन का भुगतान करना पड़ा, उसे मंगलवार से लेके पूरे वहाँ पे पिलातुस के पास लेके जाके करवाना पड़ा। If you understand that steps and you understand how much God loves you. अगर आप उन समझो के क्रमबद्ध में परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे। If we go through those steps, if we put ourselves in the place of Christ, अगर हम यीशु मसीह को उनके कदमों के हिसाब से रखेंगे, and suddenly you will have a nightmare or a dream and you will get scared that you are on the cross. कि आपको ऐसा डर मानो लग जाएगा कि जैसे आप क्रूस पे वहाँ पे होकर के। That's what Paul wrote in Galatians chapter 2 verse 20. और गलातियों का 2:20 में पौलुस वही लिखता है, I was crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूँ। It's no longer I who live, but Christ that liveth in me. मैं नहीं पर यीशु मसीह जो मेरे अंदर रहता है वो जीवित है। When we say Jesus loves you, remember he sweated it out, he gave his blood, he hanged on the cross, he went before the Father and he presented himself into heaven. The book of Hebrews says that, I skipped that verse, and he presents himself to the Father. That's what it means. Jesus loves you. He went and presented you and himself to the Father. I love this man. यीशु मसीह हम वो लहू लेकर जाके इब्रानियों की किताब में जैसे लिखा हो गया है कि वो प्रभु पिता के सामने प्रस्तुत करता है कि प्रभु देखो मैं लेके आया, और वो प्रेम को दर्शा रहा है। There is Moses, for example, there is David, there is Paul himself who went through toughest roads in their lives. मूसा, दाऊद और जैसे पौलुस बहुत खराब परिस्थितियों से गुजरे हैं। The road to heaven is not easy. The road to heaven is through the cross. और जो स्वर्ग का रास्ता है जो है क्रूस के द्वारा है, वो आसान नहीं है। Moses was a prince before God called him. मूसा जो था एक राजकुमार था जब उसे बुलाया गया था उससे पहले। But he had the feeling of God. He says one of my Hebrews is being tortured, so he kills the Egyptian, runs away and goes and lives in a desert. वहाँ पे जैसे मूसा को आत्मा जैसे वो परमेश्वर की वचन की झुंझेल रही थी कि मेरे भाइयों को मारा जा रहा है, वहाँ पे वो किसी को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। He was for the righteous people of God, because God called Israel my son, my people. वो वहाँ पे अपने लोगों के लिए था क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों को मेरे बच्चे, मेरे लोग कहलाता था। He knows that I don't want the riches of Egypt or the title of prince, but I want to live with my people. और वो राजकुमार की पदवी नहीं चाहता था, कि धनपन नहीं चाहता था मिस्र का, पर अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। That's what my thought should be. I should live with the people of God in the church. और यही मेरे भी विचार होने चाहिए कि मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ कलीसिया में रहना है। David ran away from Saul. He lived in the forest, in the jungle, and everywhere he had a chance to kill Saul. He said, I will not touch the Lord's anointed. दाऊद वो है वहाँ पे पहाड़ों में भाग गया, वहाँ पे वो कहना चाहता था कि मैं अभिषेक किए गए व्यक्ति को छूऊंगा भी नहीं। He understood the anointing and the call of God. वो समझ रहा था परमेश्वर के अभिषेक को और उसकी बुलाहट को। Paul understood the call of God. पौलुस भी उसी तरह से अपनी बुलाहट को समझ रहा In the book था। of Genesis chapter 1 verse 26, the Bible says, and he made man in his own image. उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में रचा है। People who are justified, who are called, are made in the image of Christ. और लोग जिन्हें बुलाया गया है परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, वो धर्मी ठहराए गए God's हैं। plan was to come down from heaven and to rescue those people who are made in his image. परमेश्वर की योजना थी कि वो उन लोगों को छुड़ाए जो उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। At the same time, the devil has his plan to take away people to hell. और उसी समय पे शैतान भी कार्य करता है कि वो लोगों को नर्क की तरफ लेके जाए। The word justification to read is so easy, but to understand, to comprehend is very important for us. इस शब्द को समझना पढ़ना बहुत आसान है, पर
पर इसको जानना गहराइयों में बहुत ही मुश्किल है। God is in the process of sanctification now. परमेश्वर हमें हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। We were justified, now we are sanctified. हमें धर्मी ठहराया गया और अब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, पहला कुरिन्थियों 30 कहता है, Christ is the wisdom of God for us, righteousness, sanctification and redemption. और हमारे लिए शुद्ध न्यायी ठहराना, शुद्धिकरण करना और हमारा छुटकारा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी God है। is in a great business, but do we put our hand with His hand and walk with Him? परमेश्वर बड़े कार्य में लगा हुआ है, पर क्या हम हमारा हाथ और उसका हाथ थामे हुए हैं साथ में? We need to take time out, young people, we need to take time out and to wait and think what Paul is writing. और युवाओं को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें इस पर मनन करना है, पढ़ना है कि पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर के बारे में। I was talking to an Englishman who was the head of department in our company, and I was talking about how Paul's English, or what Paul has written, even most of us cannot write 10 sentences from that today. और पौलुस ने जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से 10 वाक्य भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे अभी। If 2000 years back the world was so backward, we did not have a table to sit upon and eat, we did not have spoons, we don't know how to eat, but Paul is writing such literature. और वहाँ पे 2000 साल जैसे हम लोग पहले की बात करें, वहाँ पे कुछ नहीं था, पर पौलुस यहाँ पे इतने अच्छे व्याकरण में सब कुछ लिख रहा I है। am sometimes stunned at the sentences and the words and the concept that Paul received from the Holy Spirit. और मैं बहुत अद्भुत और समझता हूँ कि जिस तरह से किस तरह से एक एक वाक्य, एक एक शब्द, व्याकरण किस तरह से पौलुस ने लिखा है। Most of India people were not living in big houses. पहले तो लोग भारत के बड़े बड़े घरों में नहीं रहते थे। Paul wrote it 2000 years back so that today we need to say, God, thank you for Paul. और इस पौलुस ने ये सब कुछ लिखा ताकि हम कह सके धन्यवाद परमेश्वर पौलुस के लिए। The terminology, the words that are used, it is for our benefit. ये सारे चीजें जो लिखी गई है, शब्द का जो उच्चारण किया गया है, ये हमारे लिए लिखा गया है। God wrote it. परमेश्वर ने लिखा। You too can continue to trust in God's word. आप लोग उसमें विश्वास करना जारी रखें। Your situation, your circumstance will change. आपकी परिस्थिति, आपकी जो भी चीजें हैं वो बदल जाएगी। Jesus is love. यीशु मसीह का प्यार, Jesus loves you, yes. यीशु मसीह आपसे प्यार करता But है। the हाँ। one who is presenting Jesus to the world should know how much he paid to use that we use that word, Jesus loves you. और वो जो उसे बांट रहा है वो जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने क्या किया है उसके लिए। Thank you all for listening. धन्यवाद सभी का सुनने के May लिए। you have a blessed day. आपका वो दिन आशीष भरा हो। God justified us. परमेश्वर ने हमें न्यायी ठहराया है। So remember one thing: if somebody you meet on the road from another church, अगर कोई दूसरी कलीसिया से आपसे मिलता है, I'll tell you they don't even know they are saved. तो मैं आपसे Most of कहता them. हूँ बहुत सारे जन उद्धार ही नहीं पाए होंगे। They say, yeah, Jesus loves us, Jesus died for us. हाँ, वो कहेंगे यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे लिए मारा गया। The word justify is a word that is used in the court of law, और ये जो शब्द है वो न्यायाधीशों के सामने इस्तेमाल किया जाता है। where God the Father signed that paper वहाँ पे पिता परमेश्वर ने उसको जैसे अपनी स्वाक्षरी दी गई and है He writes your name on that paper. और वहाँ पे वो आपका नाम लिखता है And Jesus Christ is the attorney over there. और यीशु मसीह वहाँ पे उसका भुगतान करने के लिए खड़ा है। The paper is signed with the blood of Jesus. और वहाँ पे उस पेपर पर जैसे सिक्का मार देते हैं परंतु यीशु मसीह के लहू से। If you know these things, अगर आपको ये समझ में आता है या जानकारी है, that devil does not like it. वो शैतान पसंद नहीं करता ये चीज को। But Jesus is happy and angels are rejoicing. पर यीशु मसीह खुश है और स्वर्गदूत उत्सव मना रहे हैं। Amen. आमीन। Thank you all. God bless you. धन्यवाद सभी का, आपको आशीष हो। Jesus, name of the Lord.
That was a beautiful message by Pastor Lancy. बहुत ही सुंदर संदेश था आज का Really संदेश। encouraging message उत्साहित करने वाला on था justification and access to his throne. और परमेश्वर के सामने खड़े रहने पर जाने के लिए और धर्मी ठहराने के बारे में। And also our life is not defeated life. और हमारा जीवन जो है हारा हुआ जीवन नहीं है। Satan always wants to project something which is like you can't do this, like you are useless, right? और शैतान हमें ऐसे दोष लगाते रहता है। वो कहता है कि ये तुम कर नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, You are defeated. आप हारे हुए हो। You are not defeated. हम हारे हुए नहीं हैं, You are victorious. हम जीते हुए लोग We are हैं। not victim. हम जैसे उसके हम शिकार नहीं है। We are not victim, but we are victorious. हम शिकार नहीं है पर हम विजय प्राप्त कर चुके We are हैं। victorious Christian. हम विजय पाए हुए मसीह हैं। Imagine like that's nice to hear these messages like this. और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे संदेश सुनने के लिए। Like Satan doesn't want us to listen to this kind of messages. शैतान नहीं चाहता कि हम इन संदेशों को सुने। No, he like whatever happens, it happens for good, right? जो कुछ भी होता है हमारे भलाई के लिए Romans होता chapter 8:28. है। रोमियो का 8:28 जो God कहता है allows famine for some reason. और परमेश्वर अनुमति देता है वो Sometimes our prayers are not answered for some reason. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, कुछ कारणवश नहीं होता है। Because maybe that girl or that boy is not good for you. शायद से वो लड़का या लड़की आपके लिए अच्छा नहीं Maybe है। that job is not good for you. शायद से वो काम आपके लिए अच्छा Maybe, नहीं I don't है। know. शायद से मुझे नहीं Just पता। between you and God. ये सिर्फ आपके और परमेश्वर Everyone's के बीच situation में is very unique. सबके जो परिस्थिति है बहुत ही अद्भुत होती है। But amazing that one thing is that we are justified. एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें न्यायी धर्मी ठहराया गया है Today we believe by freedom. और हम जो है स्वतंत्रता से विश्वास करते हैं। We have a freedom. हमारे पास स्वतंत्रता है। We are not in a bondage of sin, हम पाप के बंधुआई में नहीं है or not we are slave. या फिर हम उसके दास भी नहीं हैं। Though we have a freedom, हमारे पास स्वतंत्रता है but yet to serve God. पर वो स्वतंत्रता हमें परमेश्वर की सेवा के लिए दी So गई है। let's use freedom to serve God. इसलिए हमारी स्वतंत्रता हम परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते And हैं। happy Mother's Day to all of you. आप सभी को My, मातृ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। God has a great plan for your family. और परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके परिवारों के लिए। Keep going, keep growing, आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए and we can teach our children that your life is not defeated. और आप सिखा सकते हो अपने बच्चों को कि हमारा जीवन जो है हारा हुआ नहीं है। Because world will tell them you are nothing. क्योंकि You are संसार useless. कहेगा कि आप World कुछ नहीं, outside. बाहर का संसार कहेगा उन्हें You are victim. आप जैसे एक शिकार हो वहाँ पे। But you can tell your children you are victorious in Christ. पर आप अपने बच्चों से कह सकते हो आप विजयी हो यीशु मसीह में। Amen. So let's Amen. pray. Thank you, Lord, for this beautiful message, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर संदेश encouraging के लिए, message, Lord, प्रोत्साहित वाले संदेश के लिए प्रभु, that your word sanctifies us, Lord. कि आपके वचन हमें शुद्ध करते हैं Our प्रभु। mind is sanctified by your words हमारे मन जो है आपके वचनों से शुद्ध किए जाते हैं and bring correct direction. और सही मार्गदर्शन करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Your words are precious, आपके वचन बहुत बहुमूल्य है। more precious than silver and gold. आपके वचन जो है सोने और चांदी से And बहुमूल्य also we lift up all the mothers here, grandmothers here, है। और हम यहाँ पे माँ और जो ग्रैंड मदर्स है उनको भी आपके सम्मुख रखते give हैं। them a grace, आप उन्हें अनुग्रह strength, देना, बलवान करना, wisdom, बुद्धिमत्ता देना। Lord, day-to-day challenges they face. दिन प्रतिदिन जो चुनौतियाँ उनके सामने In होती that हैं challenges, they let them know that they are victorious. और उन चुनौतियों के सामने उन्हें समझने देना कि वो विजयी है। They don't live a defeated life. वो हारे हुए जीवन नहीं जी रहे हैं, They live a victorious life. वो विजयता का जीवन जी They रहे have a हैं। sonship with our God. और हमारे पास पुत्र होने की हमें स्पेशल दिया गया है प्रभु। That we are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। So thank you, Lord, once again for Pastor Nancy, धन्यवाद परमेश्वर का सिलांसी के his लिए, family. उनके परिवार के लिए। Bless him. उन्हें आशीषित Use करना, him, Lord, for your glory. आपका उनका उपयोग करना आपकी महिमा Whenever के he लिए। teaches and preaches, let people be blessed. और जब वो प्रचार करें और सिखाएं लोगों को आशीषित करना। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen.